ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੋ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ, ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ। ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ। ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਧੌਰਾ ਲੀਨ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਇਹ ਸਾਕੇ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, 60-70 ਸਾਲ ਦਾ 1720 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1770 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਮੋਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਮੋਹਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 80 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਮਰੱਬੇ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਮੋਹਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਸੁਖੈਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਕਿਉਂ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ
दिने किते रुकना, रात पै गई है, हो सकता दिने लंघदियां किसे वेख लिया होवे भी ऐस झल विच फलाने जंगल च सिंह रुके ने, इत्थे नहीं रुकना, रात किते होर जाके रात गुजारनी। ये 60-70 वरियां दा समा है जिहड़ा कौम ने अपने पिंडे ते हंडाया, सिक्खी नहीं छड्डी। तुसीं हैरान होवोगे, हकूमत दे सामने पेश हो के कोई गल कहनी है और इन्हां नूं इन्हां दे घर भी मिल सकदे ने, इन्हां दीयां ज़मीनां भी मिल सकदियां ने, ये सुख शांति नाल अपनी पका भी सकते ने, खा भी सकते ने। इक्को ही गल हकूमत मनवाउणा चाहुंदी है, वो की बई तुसीं कह दो असीं सिख नहीं। इन्हां नूं घर भी जुड़दे ने, इन्हां नूं मकान की छत भी जुड़ती है, प्रशादा पानी भी जुड़ता है। हकूमत जबर नाल मनवाउणा चाहुंदी भी तुसीं मन जाओ, ये गल कह दो भी हाँ असीं सिख नहीं। पर यह साडा शाना मता इतिहास है भी साडे पुरखियां क्या भी असीं घर घाट दात ते लग सकते हाँ, असीं अन्न पानी खुणों कई कई दिन भुखे रह सकते हाँ, अपनियां जमीनां तक भी दाऽ ते ला सकते हाँ। पर जिहड़ी गल तुसीं जबर नाल मनवाउणा चाहुंदे ना भी कह दिओ सिख नहीं, ये गल नहीं असीं कहण नूं तैयार। सानूं घर घाट अपने छड्डने प्रवान ने, जंगलां बेलियां विच रह के मले खाने प्रवान ने, मलियां दे वैगरू बेर खाने प्रवान ने, पर असीं घर घाट छड्ड के घर घाट छड्डने मंजूर ने, सिक्खी नहीं छड्डांगे। इक्को ही गल तां हकूमत मनवाउणा चाहुंदी भी तुसीं सिक्खी छड्ड दिओ, वो कहंदे नहीं छड्डनी। ये साडा शाना मता इतिहास है भी 60-70 वरे कौम दा घर घोड़ियां दियां काठियां ही हुंदा सी। इतिहास पढ़ो, तुसीं हैरान होवोगे। विद्वान लिखते ने भी हकूमत दे सताए हुए सिंह गुरु के अपने घर घाट छड्ड के ते जंगलां विच जा लुके, घर ते कड्डे सिंह बन लुके। गुरु के जड़े सिंह ने ना, गुरु नानक साहब दी विचारधारा नूं प्यार करन वाले, वो जाके जंगलां च अपना रैन बसेरा कर लिया भी कोई गल नहीं। घर ते कड्डे सिंह बन लुकै, बन तज नीर लुकाहे। ते जदों हकूमत नूं पता चलना ना भी फलाने झल विच फलानी थां ते किसे ने आके खबर देनी भी इत्थे सिख लुके ने, छिपे ने, हकूमत ने छापा मार के शिकार करना। ते जदों सिंघां नूं पता चलना भी हुण हकूमत दे सिपाही उन्हां अपनियां जानां बचाउण वास्ते पानी च छालां मार जाणियां। तुसीं सोचो, सियाल दे दिन ने, इत्थे उदां ही पानी विच हत्थ पाउणा होवे ते बंदा कई वार फैसले लैंदा, कई फैसले बदलदा है, ते उदों वगदे दरियावां विच जान बचाउण वास्ते कपड़ियां समेत कुद जाना, लीड़ियां समेत कुद जाना। ते फिर जिहड़े पानी विच छालां मारदे उन्हां नूं हकूमत दे सिपाहियां ने अपनियां गोलियां दा शिकार बनाउणा। उस वक्त साडी अरदास विच ये शब्द अंकित होए सन कि हे वैगुरू, घर ते कड्डे सिंह बन लुकै, बन तज नीर लुकाहे। नीर दा अर्थ हुंदा पानी। सिंह घरां तो कढ दिते गए, सिंह जाके जंगलां विच सिख लुक गए। जदों जंगलां विच हकूमत नहीं शांति नाल बैठण देंदी, शिकार करदी है, पानी विच कुद जांदे ने। ते पानी विच भी जदों उन्हां दा शिकार हुंदा है, उदों फिर एक अकाल पुरख अगे जोदड़ी कीती गई भी महाराज जहां जहां खालसा जी साहिब ताहां तां रछिया रियायत। वैगुरू ये तेरा खालसा है, इहदी रछिया रियायत
ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। घर ते कड्डे सिंह बन लुकै, बन तज नीर लुकाहे, नीर लुके जो ना बचै, कहो सिंह कत जाहे। जेड़े पानी विच लुके भी विचारे नहीं बचते, हकूमत उन्हां दा शिकार करदी है, फिर वो सिंह जान ते जान किधर। घर छड्ड दिता जंगल, जंगल विच शिकार करदे आ, चलो पानी च दरिया च कुद गए, ते जिन्हां नूं दरिया विच तैरद्या होया नूं भी शिकार किया जा रहा, वो जान ते हुण जान किधर। ये 60-70 साल का समय बगानिया नहीं, साडे पुरखिया ने अपने पिंडे ते हंडाया। वो साडे बजुर्ग सन, उन्होंने इस तरह का अत्याचार जुल्म अपने पिंडे ते हंडाया, पर वारे वारे जाइए भी उन्होंने सिक्खी नहीं छड्डी। अपने घर घाट दात ला दिते, कोई गल नहीं, जाते जान, पर गुरु बाबा जी तुहाडी बख्शिश कीती दात नहीं जानी चाहिए। ये 60-70 साल का समा मैं आप संगत का ध्यान ननकाना साहब के साके वाले पासे लियाउणा चाहुंदा, पर उहदे पिछोकड़ विच एडा साका वापरन दे कारण की ने, मैं वो आप संगत के समक्ष रखने चाहना भी हुण 60-70 साल साडे इतिहासक स्थानां विचों सिख जानां बचाउण वास्ते जंगलां 'च चले गए। 60-70 साल का समा कह लो भी गुरधाम जिहड़े सन, जिथों सिੱਖੀ का प्रचार होना सी, वो खाली रह गए। उत्थे फिर खाली 60-70 साल के समय विच साडे गुरधामां दे अंदर उदासी निर्मले ये महंत ये आ गए। इहदे विच कोई शक नहीं भी ये सारे किरदार करके माड़े नहीं सी, इन्हां विच कुछ इखलाक करके किरदार करके चंगे भी सन, सारे माड़े नहीं सी। इतिहास कहंदा है भी सिख तां विचारे जंगलां च रात किते दिन किते कटदे ने, और ये गुरधामां दी हुण सांभ संभाल सेवा करते हैं, पर इन्हां विचारियां नूं इन्ना गुरमत दा ज्ञान नहीं। ये फिर अपनी मन मर्जी नाल इन्हां ने गुरधामां दी संभाल सेवा जिहड़ी वो कीती, ते 60-70 साल जिहड़ा है वो समा इस तरह अपनी तोर तुरदा गया। ये बहुते गुरबाणी दी गुरमत दे ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ 60-70 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं सी। तो इस करके गुरु नानक साहब की निरोल विचारधारा विच बहुत कुछ ऐसा जिहड़ा ब्राह्मणी कर्म कांड का भी बोल बाला होया। अगे 60-70 साल का यह समा गुजरन तो बाद कौम फिर अपने पैरों सिर खड़ी हुई। मिसलों तो बाद कुछ साडे गुरधामां वाले पासे कौम का ध्यान गया। मिसलों तो बाद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का समा आउंदा है, जिन्हों आपां सिख राज भी कहने। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वेले साडे जिन्ने इतिहासक स्थान सन, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त तो सारे इतिहासक स्थान उन्हां दीयां बिल्डिंगां और कलियां बिल्डिंगां नहीं, इत्थों तक भी इतिहासक अस्थानां दे नाम शेरे पंजाब ने चोखी जगीरां भी लाइयां सी। चोखियां चोखियां जगीरां शेरे पंजाब ने अपने राज प्रबंध विचों गुरधामां दे नाम कर दित्तियां सी। हुण महंत
निर्मले उदासीए ये गुरधामां ते सन। जदों जगीरां लग गईयां, इसे कारण तुसीं इतिहास नूं जदों वाचोगे ते शेरे पंजाब दा जदों समां आपां इतिहास विचों पढ़दे हां ते तुहानूं इतिहास पढ़दे एक गल सुननों भी पढ़नों भी मिलेगी भी उन्हां दे समय दे दौरान उन्हां दे राज प्रबंध विच ना गुरमत दा बोलबाला घट सी, ब्राह्मणी रौ रीतां दा ज़्यादा सी। उहदा कारण मैं अर्ज कीता है बई ये विचारे निर्मले ते उदासीए गुरधामां दे अंदर ये प्रबंध संभाल रहे सन। उन्हां नूं जिद्दां दी गलबात आउंदी सी उन्हां उदां दी प्रचार नहीं सी लोकां सामने रखनी। यही कारण है तुसीं शेरे पंजाब दा इतिहास पढ़ो, तुहानूं गुरमत तो उल्ट बहुत कुछ शेरे पंजाब दे राज प्रबंध विच मिलेगा। टिक्के लवाउणे, रमैना दे पाठ कराउणे, जगराते तक कराउणे, इत्थों तक चंगे माड़े दिनां दी विचार करनी, गऊआं नूं दान देना और इस तरह के कई कर्मकांड सन जिहड़े ब्राह्मण की मर्यादा विचों शेरे पंजाब दे राज प्रबंध विच भी हुंदे रहे। उहदा कारण की है बई 60-70 साल दा जिहड़ा कौम गुरधामां विचों अपने आप नूं बचाउण वास्ते जंगलां बेलियां विच गई ते उदासी ते निर्मलियां करके वो सारी विचारधारा जिहड़ी है, इसे कारण तुसीं अज भी कोई शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त दे बणियां पुरातन इमारतां वेखोगे ना ते तुहानूं वो भावें इमारतां आपां गुरु घर दियां कह सकदे हां पुरातन, उन्हां दियां कंधां देखोगे तो तुहानूं उन्हां कंधां दे उपर गुरु साहिबानां दियां तस्वीरां दे चित्र, देवी देवतियां दे चित्र वो मिलणगे। क्यों? इक्को ही मैं सनिमर बेनती कर रहा भी ये उदासी ते निर्मले विचारे तत् गुरमत दे जानू नहीं सी भी गुरबाणी दी विचारधारा की है। तो इसे कारण शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे समय विच भी ब्राह्मणी विचारधारा दा बोल बाला शिखर ते रहा। शेरे पंजाब चलाना करदा है ते उहदे नाल राणियां ते गोलियां नूं जबरी सती कीता जा रहा है। इत्थों ही पता लग जाता है भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं गुरबाणी दी विचारधारा दा भी इन्ना जानकारी नहीं जे हुंदी वो आप भी जानदा और अपने राज प्रबंध विच भी दसदा बई साडी तां गुरबाणी दी विचारधारा है भी सतियां इन्हां आखियां जो मड़ियां लग जलन। साडी विचारधारा यह है भी सतियां वो नहीं पति मर जाए तो चुक के पत्नी नूं भी नाल जींदियां उहदे सती कर दिओ। साडी विचारधारा यह है भी पति दे चलाने तो बाद पत्नी सड़े ना बल्कि अपने पति दे बिरहे दी चोट विच जीवे। असीं उहनूं इस विचारधारा नूं मनने और सती प्रथा गुरु अमरदास साहब ने बंद करवाई। पर मैं अर्ज की भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वक्त भी बोल बाला जिहड़ा है वो ब्राह्मणी कर्मा कांडां दा बहुतात रहा। टिक्के लगने, रमैणा दे पाठ होने, जगरातियां तक होने। तो गुरबाणी दी विचारधारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज भाग विच भी ओह कह लो भी ना दे बराबर सी। जे हुंदी सी तो केवल एक कर्मकांडी सी। तो इन्हां समयां विच जगीरां गुरु धामां दे नाम लग गईयां। जिहड़े महंत काबज सन हुण जदों जगीरां लग गईयां उन्हां ने जगीरां दे उपर अपना ही जद्दी पुश्ती कब्जा बना लिया भी इहदे हुण मालक असीं आ। शेरे पंजाब दे चलाने तो बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज सारे हिंदुस्तान विचों अखीर ते पंजाब ते काबज हुंदे ने। अखीर ते
और उन्हें एक गल वो बड़े दिमागी तौर पर वो बड़े हुशियार ने। उन्हें एक गल वेखी भी सदियां पुराना हिंदुस्तान दे विचों मुगल राज की जड़ ये सिखां ने पट दी है। इन्हां कोल की ऐसी विचारधारा है भी ये सदियां पुराने तुरे आ रही मुगल सल्तनत नूं हिंदुस्तान विचों दी जड़ पुट्टण दी इन्नी ताकत रखते ने। उन्हां फिर गुरबाणी नूं और साडे इतिहास नूं पढ़िया, माफ़ी मंग मैं अर्ज करांगा असीं नहीं ना पढ़दे, बगानियां ने पढ़िया। इसलिए नहीं भी वो गुरु नानक दी विचारधारा नूं मनदे सन, इसलिए पढ़िया भी असीं पंजाब ते काबज होना है ते सानू इन्हां दे जो धर्म की विचारधारा है पहला वो जाननी पैगी, नहीं तो इन्हां लागे नहीं आउण देना। ये सदियां पुराने जे मुगलों के राज प्रबंध नूं उखाड़ के अपना राज कायम कर सकते ने, इन्हां साडे भी पैर नहीं लगन देने। पहला इन्हां दा इतिहास और इन्हां दे जिहड़ी विचारधारा है बाणी दी उहनूं जाणीए। उन्हां जाणिया, उन्होंने समझ पई भी असल विच इन्हां नूं जिहड़ी ये ताकत मिलदी है ना ये गुरबाणी तो मिलदी। उन्हां फिर अपने कोलों इतिहास लिखवाया जिहदे विच उन्होंने गलत इदां दीयां गल्लां लिखवा के ते बड़ियां उन्हां नूं लोकां दी जुबानी उन्हां नूं प्रचारना शुरू कर दिता भी जिवें जी गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी दे वेले एक उच्चे मकान की छत ते चढ़ के ते वेखदे सी भी मेरा टोपी वाला सिख आउंदा है कि नहीं आउंदा। भाव भी गोरे साबित करना चाहुंदे सी भी असी जिहड़े आए हैं ना असी अपनी मर्जी नाल नहीं बल्कि असी भी गुरुआं दी बख्शिश नाल ही इधर आए, क्योंकि गुरुआं पहलां भविखबाणी कीती है भी मेरा गोरा भी टोपी वाला भी मेरा सिख है। इदां दीयां गल्लां साडे इतिहास विच लिख के उन्होंने प्रचारियां ते असी साडा समाज भी इन्ना पढ़िया लिखिया इन्हां गल्लां नूं ना जान सकिया। उन्हां गल्लां दे उपर फिर विश्वास कर लिया ते दूजी गल उन्हां वेखी भी इन्हां सिखां नूं गुरधामां दे विचों गुरु दी गल सुनन नूं मिलनी है, क्योंकि इन्हां दे धर्म दे जिहड़े स्कूल ने वो गुरधाम ने। उन्हां वेखिया भी महंत काबज ने, उन्हां महंतां दी पिठ थापड़ी भी तुहाडी हवा वाल कोई नहीं वेंदा, वाह वाल तुहाडी वाल कोई नहीं वेखेगा, तुसी अपनी मन मर्जी करो पर साडे कहे मुताबक तुहानूं तुरना पैगा। असी नहीं तुहानूं कहिंदे इत्थों दी आमदन रज रज छको, सानूं नहीं सरोकार, पर असी ये कहने भी जिहड़ी गल असी कवांगे करनी तुसी ओह है। महंत इस गल ते खुश हो गए, क्योंकि वक्त दा जिहड़ा है अंग्रेज़ उहदा सरकार सी, उन्हां कहा भी सानू की लोड़, सानू तां जिद्दां कहोगे असीं उदां करांगे। महंतां दी पिठ थापड़ी अंग्रेज़ां ने गोरियां ने, क्योंकि उन्हां वेख्या भी जे गुरधामां विचों ये सिखां नाल हो गए ते सारी कहानी गड़बड़ हो जानी। इन्हां नूं हत्थां विच रखो ते सिख जिधर मर्जी तुरे फिरन, इन्हां नूं विचारधारा ही इन्हां सामने इदां दी परोस के रखो, ये बेचारे पजल होए फिरन। तो फिर इन्हां जगीरां दे लालच विच महंत लोग जिहड़े सन इन्हां नूं आमदनी का साधन बनिया, इन्हां दा चेतना करे। और जिथे माफ़ी मंग मैं अर्ज करांगा भी आमदनी हो गई, इन्हां महंतां नूं धन दौलत दे गफ्फे खुले आउण लग गए होणे। इन्नियां जगीरां गुरधाम दे नाम होवे, कोई पुछण वाला नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। वक्त दी गोरा सरकार कंड ते खड़ी है ते सुभावक फिर लोग जिहड़े महंत सन ये अपने इखलाक तो डिगन लग गए। किहड़ा सानू पुछण वाला है? इन्हां धीआं भैणां दी इज्जत नूं भी हत्थ पाउणा। गुरधामां दे विच इन्हां ने इत्थों तक नशे भी खुला नशियां दा सेवन करना शुरू करता। क्यों? मगर गोरा सरकार बैठी, जे जाके कोई फरियादी होएगा तो सानू तो खुद गोरे कहिंदे भी जो जी आउंदा है वो करो,
पर जो असी कहने उहदे मुताबिक करो। इथों ये कहानी विगड़दी 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 इन्नी विगड़ गई बई उदों सिंह सभा लहर उठी, जिहदे आगू सन ज्ञानी दित सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह वर्गे, उन्हां कौम नूं इस सुती हुई नींद दे विचों हलून के जगाउणा चाहिया। उस वक्त दियां दो कुछ घटनावां ने वो मैं अर्ज करनियां चाहुंदा। बई सिंह सभा लहर उठी और उन्हां प्रचार किया, और उस प्रचार दे सदका कुछ कु सिंह जिहड़े अमृत छक के उन्होंने अमृत की दात लई गुरु वाले बने ते सचखंड श्री हरमंदर साहब मत्था टेकन गए। पर जिहड़े उत्थे महंत काबज सन श्री अकाल तख्त साहब ते सचखंड श्री हरमंदर साहब, वो इन्हां नूं अंदर वड़न ना देन। क्यों? अंग्रेज कहिंदे सी भी इन्हां च फुट पाओ, ये गुरु धाम विच आउण ते इन्हां नाल इदां दा तिरस्कार करो, नरादर करो, इन्हां नूं गुरधामां तो ही नफरत हो जाए। हुण कोई घरों चल के गुरु घर आए तो आपां उहनूं अगों इस ढंग नाल कौड़ा बोलीए तो अगले दे मन च आऊगा ही ना भी मैं लैण की आउणा, मैं तो आया सा गुरधाम, इन्हां लोकां नूं तां बोलण दी भी तमीज़ नहीं। ये साजिश अधीन महंतां दे कोलों करवाया गया सी। गोरियां ने भी सिखां दा बड़ा विश्वास है गुरु घरां नाल, इत्थे तुसी अपनियां मन मर्जियां करो ते इत्थे वड़न ना दिओ, वितकरा करो, जिन्ना रज के करोगे लोग इन्हां नालों टुट जाणगे। ते फिर उहदा नतीजा की निकलिया बई जिन्हां नूं लोक छूत कहिंदे ने ना, नीवीआं जातां वाले, गुरु नानक नहीं किसे नूं नीवां कहिंदा, जिन्हां नूं समाज जां ब्राह्मणी वर्ण वंड दे मुताबिक शूद किया गया सी, शूदर, सिंह सभा लहर दे प्रभाव उन्हां कबूलिया, वो खंडे बाटे दी पौल छक के गुरु वाले बन गए। सचखंड श्री हरमंदर साहब होए आए ते पुजारियां ने धक्के मार के उन्हां नूं कढ दिता भी तुहाडी कड़ाह प्रशादी देग नहीं प्रवान हो सकती, तुसी शूदर हो, चूड़े चमार हो, तुसी गुरु घर नहीं आ सकते। और जिहड़े उस वक्त दे पंथ दर्दी सन, उन्हां दी ज़मीर जागदी सी, मरी नहीं सी। तुहानूं अज भी एक नमूना इसे तरह का अजोके इसे पंजाब विच विखा सकदे आ, पर गल है भी जागदी ज़मीर ते अणखां वालियां दा इतिहास है। हुण पल्ले उन्हां दे पै गया जिन्हां दी ज़मीर मर गई है, हुण नहीं कोई उठदा। अज भी तुसी तुहाडे नज़दीक इत्थे बठिंडे दे एक डेरा है, बड़ा फेमस है, और मैं नाम लैके अर्ज करना चाहना, जे कोई जाए तो उत्थे वेख आयो, क्योंकि सानू पता चले भी अज भी ये लोग सरकारां दी साजिश अधीन सिੱਖੀ विच वंडियां पा रहे ने। असी बाहरों वेखदे हां भी ये बंदे ने बाणा सिखां वाला पाया है, गुरबाणी का प्रकाश किया है, बड़ा तगड़ा महापुरख है। महापुरख का मतलब ये नहीं भी तुहाडे पंथ की मर्यादा दियां धज्जियां डाए, जिहड़ा पंथ की मर्यादा का प्रचार करता है महापुरख तो वह है ना, ये तो नहीं भी जिहड़ा जड़ां वढ रहा वो महापुरख है। बाणा उन्हें पाया है, वो महापुरख तुहाडा नहीं, वो महापुरख सरकारां दा थापिया होया है। अज सरकारी एजेंटां नूं सिखो पछाणन दी लोड़ है, त्याग दिओ उन्हां नूं, पर साडे कोलों अखां नहीं असीं पछाण सकीए। पुच्छो मंडी डेरा है, तुसीं जाओ, उत्थे वड़न तो पहला लंगर विच रोक के पुछया जा रहा भी दसो किहड़ी जात दा, तुसीं दस दिओ जी मैं फलानी नीवीं, आओ भांडे उधर चल मैं उच्ची जादा। ते की ये कुछ महंतां वाला नहीं हो रहा जो महंत कर रहे सी भी दरबार साहब कुछ गरीब अमृत की दात लैके गुरु वाले बन के आए, महंत कहिंदे तुहाडे आउण नाल शूदरो हरमंदर साहब पिटिया जाएगा। ते फिर उस वक्त पंथ दर्दियां दे खून ने उबाला खादिया भी हुण इन्हां नूं कढना पैना है, ये ना निकले और ये गुरु नानक साहब की विचारधारा नूं खत्म कर देणगे। सिंह सभा लहर चल रही सी, उत्थे
इन्हां पुजारियां नूं सामने बुला के पंथ दे दर्द रखण वालियां ने एक गल पूछी भी क्यों नहीं आ सकते। ये जी नीवे ने फलाने ने ते दर्द रखण वालियां ने कहा भी असीं तुहानूं नहीं पुछदे, साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट गुरां की देह है, आओ पुजारियो तुसीं भी आ जाओ, इन्हां नूं भी सद लैने, अकड़ा प्रशादी देग लैके मत्था टेको, बाणी दा हुक्म लो, जो बाणी कहेगी आपां उहदे ते अपने जिहड़े शरधा दे फुੱਲ ਉਹ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ पुजारियां नूं सद्दिया गया और मत्था टेक के अरदास करके हुक्म लिया गया भी महाराज ये सिंह सज के तुहाडे दर आए ने ते महाराज तुहाडा हुक्म की है, पुजारी वड़न नहीं देण डे। ते बाणी विचों उस वक्त हुक्म आया सी भी निगुणियां नूं आपे बख्श लै भाई, अपनी सेवा मेरा गुरु इस तरह निगुणियां नूं जिन्हां कोल गुण नहीं, गुरु उन्हां नूं भी बख्श दिंदा है, अपनी सेवा विच ला लैंदा है। उत्थे फिर इन्हां महंतां नूं पुजारियां नूं भजना पिया। फिर तरन तारण साहब की घटना आउंदी है। इस तरह ज्यों ज्यों ये पंथ के अधीन प्रबंध आउंदा गया, महंत इत्थों भजाए। और इतिहास ये भी दसदा है भी श्री तरन तारण साहब, वैसे तो साडा मस्या पुन्या नाल कोई सरोकार नहीं, असीं नहीं मनदे, पर असल विच महंतां दीआं मस्या ते पुन्नियां बड़ियां फेमस कीतियां। कहिंदे पंजाब दे मेलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ सब तो गंदा मेला जिहड़ा है वो तरन ताਰਨ मस्या दा भरदा सी। शब्द कहिंदिआं भी शर्म आउंदी है भी उत्थे महंतां ने गन्निਆਂ ਦੀਆਂ गनेरियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ मत्था टेकण आउणा। इन्हां लोकां ने महंतां दे गुंडिਆਂ ने उन्हां ते लड्डू गन्निਆਂ ਦੀਆਂ गनेरियां मार मार के इस तरह जलील करना। पंथ दे सूझवान लोग फिर जागे तो उन्हां कहा भी इन्हां नूं कढना पैना है, ना कढिया ये बड़े साडे धर्म लई घातक सिद्ध होणगे। जागे बेशक शहादतां दा जाम पीता है, पर श्री तरन तारण साहब का भी कब्जा वो पंथ दे अधीन हो गया। ध्यान बनदियां बनदियां सब तो ऐबी सी महंत ननकाणे दा, ननकाणा साहब की धरती ते जिहड़ा महंत काबज सी उहदा नाम सी नरैण दास नरैणू। इहदे मुतलक भी आउण जाण वालियां सिखां नूं पता सी भी ये बड़ा विचारी है, बड़ा अव्वल दर्जे का नशेड़ी है। और इत्थों तक भी उन्हां दिनां विच एक सिंधी जज श्री ननकाणा साहब मत्था टेकन आया, और रिटायर्ड होया ते कहिंदे मत्था टेकन आया, उहदी बच्ची नूं इत्थों तक जलील किया गया, बेपत किया गया महंत वल्लों। ये गल सिंघां विच गई तो गुरु के सिंघां ने भाई लक्ष्मण सिंह वर्गिया ने, सरदार करतार सिंह झब्बर वर्गिया ने धैया कर लिया भी हुण जिंद जांदी है ते जाए, पर इस महंत नूं ननकाणा साहब विचों कढना है। पर मैं अर्ज की बई ये लोक पंथ नाल एवें नहीं टकराए, पिछे इन्हां दे वक्त दी हुकूमत दा थापड़ा है। बई तुसी जो मर्जी करो, तुहानूं कौन पुछण वाला है। इस तरह ये महंत अपनियां मर्जियां करते सन ते ये समा फिर नेड़ आण पहुंचा करीबन लगभग 20 फरवरी 1921 का। कहते ने भी उस वक्त सनातन सिख एक कानफ्रेंस सी लाहौर विच होनी। तुसी नाम ना भुलियो, नाम चेते रखियो, बाबा करतार सिंह बेदी सी, बेदी बेदियां विचों। मेरी कोई किसी नाल जाति जां जमाती दुश्मनी नहीं, पर तुसी इतिहास पढ़ोगे लूह कंडे हुंदे ने। असल विच बाबे दी अंश बंश अखवाउण वालियां नूं चाहीदा सी भी गुरु दी गल ते आपा कुर्बान कर दे, पर सच ये है बई ये भी महंत कोल खरीदे जा चुके सी। बाबा करतार सिंह बेदी ਇਹਦੇ घर लाहौर विच महंत मीटिंग करन आ रहा है, जिहड़ी 20 फरवरी 1921 ਨੂੰ होनी है। भी अकाली आ रहे ने, ये सिंह पंथ का दर्द रखण वाले मेरे कोल गुरधाम का कब्जा खोण वास्ते आ रहे ने, ते बाबा करतार सिंह बेदी दे घर विच मीटिंग हो रही है भी इन्हां नूं किदां दा सबक सिखाईए। तुसीं सोचो बई गुरु नानक दी अंश अखवाउण वाली
ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਇਤਿਹਾਦਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 156 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 156 ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿੱਦਣ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 1921 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ, ਗੁਰਧਾਮ ਹੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਜ ਹੈ ਕਲਸ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰਮੈਣਾ ਦੇ ਪਾਠ, ਟਿੱਕੇ, ਹਵਨ, ਜੱਗ, ਸ਼ਰਾਧ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਤਾ। ਬਈ ਲਛਮਣ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ
सरदार केर सिंह वर्गे शहीदां दा भी जिक्र आउंदा है। तुहाडे लुधियाणे दे लागे यरग पिंड है, यरग, इत्थों दे सरदार केर सिंह सी, फौज विच भर्ती सन, गोरा फौज विच, ते घर आए। 7 कुछ साल का उन्हां दा पुत्र सी, नाम रखिया सी दरबारा सिंह। ते दरबारा सिंह 7 वरियां दा, ते छोटे हुंदियां कहिंदे भी मां चलाना कर गई सरदार केर सिंह दी धर्म सुपत्नी। ते जदों जथा जान लगा, सरदार केर सिंह तैयार होए भी ननकाणा साहब आज़ाद करवाउण वास्ते जथा जाना है। तो 7 कुछ वरियां दा जिहड़ा पुत्र सी ना केर सिंह दा दरबारा, वो कहन लगा बापू जी मैं भी जाना है। तो सरदार केर सिंह कहन लगे पुत्त उत्थे शहीद होना पैना। बच्चा सी, बापू मैं भी तुहाडे नाल शहीद होवांगा। ते दादी सी कहिंदे सरदार दरबारा सिंह दी, उन्हें पुत्त नूं भी ते अपने पुत्र नूं केसी इशनान कराया। ते दोपहर ढली ते दोवां नूं असीस दे के ननकाणा साहब नूं तोरिया। और उत्थे जदों महंत ने बड़ी वड्डी पद्धर ते कतलेआम शुरू कर दिता, ते जथे विचों कुछ सिंघां ने कहा भी बच्चा है, चलो ननकाणा साहब दे अंदर जिथे प्रकाश है महाराज दा जन्म स्थान, ते उत्थे छोटी जी अलमारी सी, उहदे विच इस बच्चे दरबारा सिंह नूं ढक दिता भी चलो ये बच सकदा है। पर वो अलमारी दे विच ही वो अपने पिता नूं आवाज़ मार के कहे भी बापू तू मैनू तां घरों कह के आया सी भी तू भी मेरे नाल शहीद होई, ते हुण आप शहीद हो गया है ते मेरी वारी। महंत दे गुंडियां ने सुनिया, वो कहिंदे भी जदों खून साफ कर रहे सी ना शहीदां दा डुलिया भी नामो निशान मिटाओ, उन्हां विचों एक महंत दा जिहड़ा बदमाश रखिया सी उहदा नाम आउंदा लद्दू लंगा। ये लंगा के कहिंदे चलदा सी, बड़ा इस सुभाਅ दा सी। वो खून साफ करने वाले अंदरों भज के बाहर गए भी महंत जी अंदर तो कोई भूत प्रेत है, बला आवाज़ आउंदी है। इन्हें दारू पीती हुई सी लद्दू लंगे ने। कहंदा इत्थे लक्ष्मण सिंह वर्गियां बलावां नहीं रहन दित्तियां, आओ मेरे नाल आया। वो अलमारी खोली, विच वो बच्चा दरबारा सिंह सी, धू के बांह तो ते बाहर जिथे अध सड़ियां कोई लाशां सहकदे हुए महंत तेल पा पा के साड़ रहा सी ना, जींदे नूं उहदे उपर तेल पा के सुट दिता। ये वो महान शहीद है। उस मां दा मैं जरूर जिक्र करना चाहना भी जदों ये ननकाणा साहब दा साका हो हटिया ना, जरग पिंड भी खबर पहुंची ते मां जी भ्याणी दे आया भी मैं अपने पोते नूं ते पुੱਤ नूं भेजिया सी, चलो जाके वेखां। मां गई ते कहिंदे भी जदों दरवाजा खुलिया ते मां ने अंदर जाके बेचारी लभदी फिरे भी किते मेरे पुत्र दा जां मेरे पुੱਤ दे शरीर दा कोई अंग मिले। तो इतिहास दसदा है भी सरदार केर सिंह फौज विच सी ते बर्फ विच रहन करके उन्हां दे एक लत्त दे उपर फलवैरी दा निशान सी। वो गोडे तो हेठां पैर तक दी वो लत्त जिहड़ी अध सड़ी किते मां नूं लभ गई। ते वो बेचारी चुक के ते जथे नूं दिखावे भी वेखो सिंघो आ मेरा वो पुੱਤ केर सिंह दा शरीर दा हिस्सा है जिहड़ा शेरां दा शिकार करन वाला सी। पछाण लई मां ने लत्त भी मेरे पुੱਤ दी है फलवैरी तो। और अरदास कीती भी सतगुरु ये तेरे घर प्रवान हो गए ने, तेरे घर प्रवान। इन्ना सबर सी, सिदक सी मावां विच। तो उस तो बाद वारी आई, वक्त दी गोरा सरकार पहुंच गई जिन्हें महंत दी पिठ थापड़ी सी। दरवाज़ा बंद हो गया, अंदर लाशां धोखरियां ने, कुछ सड़ चुकियां ने, थां थां ते सिंघां दे शरीरां दे लोथड़े खिलरे पए ने। ते कहिंदे भी उस वक्त सरदार करतार सिंह झब्बर रातों रात जदों ननकाणा साहब दे इस साके दी खबर पहुंची, ये महान पंथ दर्दी ने घोड़े चढ़ के ते पिंडां पिंडां में होका दिता सी भी सिंघो हुण असीं ननकाणा साहब दा कब्जा लैके हटांगे, बेशक सानू जिन्नियां मर्जी जाना कुर्बान करनियां पैण। ते रातों रात इन्ना दर्द रखदे सी। अज तां डर जांदा है ना भी पता नहीं की होएगा,
दर्द रखण वालियां ने रातों रात 2200 का जत्था, 200 जवानों का जत्था, 11 जत्थे 2200 जवान इकट्ठा कर लिया। तो सवेरे जिहड़ा वक्त दा उस वक्त दा कमिश्नर सी ना, उदों सरदार करतार सिंह झब्बर जत्था लैके तुरिया वे भी सिंह हुण रुकना नहीं। तो अगों वक्त दा कमिश्नर सरदार करतार सिंह झब्बर नूं कहंदा, झब्बर साहब अगे गोरा फौज ने मशीन गन्ना, बीड़ियां ने मशीन गन्ना। तो झब्बर साहब ने जवाब दिता सी बई हुण तुसी साडे ते गोलियां चला के देखो, हुण असी शांत नहीं रहना। हुण तुहाडीआं मशीन गन्ना दा मूँह भी असी मोड़ना जानने, क्यों असी तैयारी करके आए हैं। क्यों 150 के लगभग गोरा जवान सी, इधरों 2200 झब्बर अपना जत्था लैके पहुंचा सी। 2200 जवानों के 11 जत्थे सी, 200 दे और 2200 जवान सी। ते मजबूर कर दिता सी उस वक्त दे कमिश्नर नूं। कमिश्नर कहंदा सी भी झब्बर साहब तुसीं चाहुंदे की हो। वकाऊ नहीं सी ना आगू लोग उदों, हुण विक जांदे ने। ते झब्बर साहब ने कहा सी भी चाहुंदे आ सानू ननकाणा साहब दा कब्जा चाबियां दित्तियां जाण, सवेरे देंगे। झब्बर साहब ने कहा सी सवेर नहीं, हुणे चाहिदियां ने, इसे वक्त चाहिदियां। मजबूर कर दिता सी पंथ ने। ते वक्त दी गोरा सरकार नूं जिहदा उस वक्त 60 मुल्कां ते 60 देशां ते गोरियां दा कब्जा सी। ਜਿਹੜੇ महंत नूं कहंदे सी भी तेरी हवा वल कोई नहीं वेखदा, पर पंथ जदों एक मुठ हो के पिया ते मजबूर कर दिता सी 60 मुल्कां ते राज करन वालियां गोरियां नूं भी सानू साडे गुरधाम दा चाबियां दिओ, कब्जा दिओ। दिता, उसे वक्त लिया। हुण तां इत्थे पंथक मर्यादा की गल आउंदी ते असी कंन लपेट लैने, ना जी रहण दिओ पता नहीं की बनेगा। नहीं, कौम का दर्द पैदा हुंदा है जदों अपने महान शहादतां देण वाले पुरखियां दे दिहाड़ियां नूं मन्नांगे, जाणांगे। इस करके एको बेनती है बई उन्हां दीयां बरसियां ना मनाओ जिन्हां ने कौम नूं घट्टिओ मिट्टी रोलिया है। उन्हां दीयां बरसियां मनाइए जिन्हां ने कौम दी लत्थी पग नूं दोबारा कौम दे सिर ते धरिया है। अज सरदार लक्ष्मण सिंह पता नहीं काहतों भुल गया है। वो महान पुरखे चेते करिए जिन्हां ने अपना आपा गुरधामां दी पवित्रता लई वारिया है। पर एक बड़ी अफसोस की गल है भी जदों ननकाणा साहब दा सारा प्रबंध सिखां दे हत्थ आया तो उस वक्त ही फिर पंथ ने कमेटी बनाई जिन्हों अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहने। उदों पंथ ने मर्यादा बनाई जिन्हों अज सिख रहत मर्यादा। अज लोग कहते ना भी ये कदों बनी है, ये उदों ही बनी है जदों ननकाणा साहब का साका होया है। पंथ ने मिल बैठ के कहा भी नहीं गुरधामां दी एक मर्यादा प्रबंधों लिखो और उन्होंने सिख रहत मर्यादा कहा गया। अज तो जना खना मेरे वर्गा बाबा उठता वो अपनी डेरे की अपनी मर्यादा घड़ मारदा है, पुछण वाला कोई नहीं। नहीं लोड़ है, पंथ ने कुर्बानियां करके गुरधाम आज़ाद करवाए, मर्यादा होंद च लियाई। अज असीं उहनूं पुछ ही नहीं रहे। फिर उत्थे जदों शहीदां दा संस्कार किया जान लगा, इक्को चिखा चिनी गई ते सारे शहीदां दे शरीर दे जिहड़े लोथड़े टुकड़े सानूं लभ के चिखा ते चिने गए। ते प्रोफैसर जोध सिंह हुरां ने उस वक्त कहंदे अरदास कीती ते अरदास तो पहला एक गल कही सी चिखा चिन के ना, क्योंकि उदों मैं नाम लैके अर्ज करांगा भी सनातन मत वाले हिंदू वीर आप अरदास करते हैं ना भी बंद बंद कटाए गए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां, ये मजाक करते हुंदे सी भी एवें सिख अरदास बना के करन डट्ठे हुए ने, बंद बंद कटाए जा सकते हैं, खोपरियां लुहाइयां जा सकदियां। ये व्यंग करते सी जिवें अज करते हैं ना भी ये तो हो ही नहीं सकता जी बंद बंद कटाउणा, एवें सिख लगे हुए। प्रोफैसर जोध सिंह हुरां ने उदों जदों शहीदां दे करीबन 15-20 टोकरे मास के टुकड़ियां दे बोटियां दे भर के चिखा ते रखे ना, ते अलानिया कौम का दर्द रखण वाले प्रोफैसर जोध सिंह ने एक गल कही सी सनातन मत वालियां नूं वंगार के, तुहानूं यकीन ना होवे ते हुण आके अपनी अखां नाल वेख सकदे हो, असीं एवें नहीं कहिंदे जिन्हां बंद बंद कटवाया है असीं कटवाउणे भी आ। उदों बड़ा बोलबाला चलिया सी,
ਹੁਣ भी ये गुप्त रूप विच, पर सानू साडे इतिहास तो सीखण दी लोड़ है। अगली मैं अर्ज करांगा भी चिखा चिन के अरदासा सोधिया गया तो 5 मते पास होए सी। 5 मते वो किहड़े ने, मैं ध्यान दिवाउणा चाहुणा। पहला मता सी बाबा करतार सिंह बेदी, गुरु नानक दी अंश है। वैसे तो बाबे ने क्लीयर किया भी इत्थे शरीर दे खून नूं मैं कोई अहमियत नहीं देंदा, इत्थे विचारधारा करके मेरा पुत भाई लैना बनदा, मैं प्रवान करदा। हाँ, मेरे खून विचों भी कोई मेरी विचारधारा नूं मन्ने, वो मेरा पुत है। पर सच है भी इत्थे गुरु दे बिंद तो पैदा होने वाले शायद उन्नी अपने पंथ की चढ़ती कला लई ना मार के मारे होण, जिन्ने गुरु दे नाद तो पैदा होने वाले ने अपना आपा वारे है। पहला पंथ ने मता प्रवान किया सी, पास किया सी भी बाबे बेदी नूं, करतार सिंह बेदी नूं पंथ चो छेको। क्यों? ये पंथ नाल गदारी करदा है, ये महंत दियां अपने घर विच कोठी विच गुप्त मीटिंगां कराउंदा है। अज सिखो जागो, जिहड़े पंथ नाल गदारी करदे ने उन्हां नूं मूंह ना लाओ। लोड़ है असीं ध्यान रखीए भी किहड़ा गदारी कर रहा, किहड़ा कौम की चढ़ती कला नूं ध्यान विच रख के तुर रहा है। मनना पैगा, अपने इतिहास तो सीखीए तो उहदा सदा लई बाईकाट करिए। पहला मता बाबा करतार सिंह बेदी नूं पंथ चो छेको। दूजा, इन्हां शहीदां दे भोग पाए जाण ते काला काला दस्तारा सिरां ते कालियां दस्तारां सजाईयां जाण। ये उस वेले काली दस्तार जिहड़ी वो सिख पंथ विच फेमस हुई है, काली दस्तार। तीजा मता सी भी इन्हां शहीदां दी यादगार, ढुकवीं यादगार कायम कीती जाए। ढुकवीं ते शायद तुहानूं स्वानूं ना पता होवे भी शहीदां दी कोई यादगार कायम है। मैं हुण हैरान हुन्ना, इत्थे अखौती साडे कुछ नाम धरीक पंथ दे हथ ठोका लीडर कहिंदे भी आ जिहड़े सिख मिशनरी कॉलेज वाले ने बंद होने चाहिए ने। इन्हां नूं कहिए भी जाके जिहड़ा पंथ दा ननकाणा साहब आजाद करवाउण वाले ने ना, उन्हां दी याद विच ही पंथ दर्दियां ने शहीद सिख मिशनरी कॉलेज बनाया। तुसीं अमृतसर साहब जाओ, जिन्ने कौम दे अज नामवर गुरु घर दे कीर्तनीए तुहानूं उत्थों सिक्ख्या लैके तुहाडे सामने कीर्तन करदे मिलणगे। शहीद सिख मिशनरी कॉलेज जिहड़ा है ये ननकाणा साहब दे शहीदां दी याद विच स्थापित किया गया, श्री अमृतसर साहब। ते अगला चौथा मता सी वो ये कि महंत नूं इहदी कीती दी सज़ा दिती जाए। पर यह अफसोस रहेगा ये मता, क्योंकि ध्यान कौम दा इधर ना गया ते महंत बच गया। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उधोके होरां दी ये विचार है भी महंत नूं देश की आज़ादी तो बाद गांधी लै गया सी। गांधी ने यूपी विच जाके ते महंत नूं गुप्त तौर ते जमीन दे दिती है। महंत 1971 तक जींदा रहा जे, 1971 तक। ये डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उधोकियां दी विचार है बई ये बच गया ते ये 50 साल करीबन कौम दे नाल कौम दा कतलेआम करन तो बाद भी ये वक्त दियां सरकारां दा हाथ ठोका बन के ये यूपी विच अपनी आज़ादी दी जिंदगी गुजारदा रहा, क्योंकि सरकार दी शह सी ना। ते पंजवां सी वो मते दा अखीर बई अज तो बाद गुरधाम जिहड़े ने ये सच्चे सुच्चे इखलाक वाले सिख इहदा प्रबंध करन। ये मते अज भी जदों पढ़दे हां ते बड़ी घाट रड़कदी है। अज भी असीं सुते होए हां, नहीं जागण दी लोड़ है। सिखो, इत्थों निकली गुरु दी विचारधारा ने साडी कौम विच जागृति लियाउणी है। अज अखां खोलीए, कौम दे भले लई दिन रात तत्पर रहिए, फिर कौम चढ़दी कला विच जाणी। ये 5 मते होए। प्रिंसीपल जोध सिंह होरां ने अरदासा सोधिया ते जदों शहीदां दी चिखा नूं लांबू दिता गया, कहण लगे भी आसमान नूं छूहण वालियां लाटां इन्हां शहीदां दीयां चिखा विचों उच्चियां निकलियां। पर वो शहीद जिहड़े 156 दे लगभग ने, सानूं तां पूरे नाम भी नहीं पता, 156 दे लगभग शहीद होए। उन्हां अपना आपा वार के महंत दे कीते होए कुकर्मां नूं श्री ननकाणा साहब विचों धो दिता। अज लोड़ है
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।